Hello, students. Today we are going to learn a poem, Speak Up, a poem that's a voice to voiceless, written by Faiz Ahmad Faiz. Now let's have a brief introduction of the poem. This poem is taken from Faiz Ahmad Faiz's collection of poems Naqsh Faryadi, published in 1941. Faiz wrote Speak Up during the final phase of the British rule. It's evocative of that era. Speak Up is a beautiful expression of the poet to defy oppression. It's a poem of profound meaning and courage that intends to give voice to the voiceless. ये जो पोइम है स्पीक अप ये फैज़ अहमद फैज़ के शायरी मजमूए नक्श फरियादी से ली गई है। फैज़ अहमद फैज़ ने ये पोइम ब्रिटिश रूल के आखिरी दौर में लिखी। ये पोइम हमें उस दौर के जुल्म व ज़्यादतियों की तस्वीर पेश करती है। स्पीक अप हमें शायर के जुल्म के खिलाफ दिफा का इजहार करती है। ये पोइम बहुत गहराइयों से आवाज़ देती है बेआवाज़ लोगों को, यानी ये आवाज़ बेआवाज़ लोगों में बगावत का जज्बा पैदा करने की एक भरपूर कोशिश है शायर की ओर से। Now about the poet. Faiz Ahmad Faiz was born in Sialkot, Punjab in 1911. He figures among the most influential poets of the 20th century. Faiz was a journalist and a broadcaster. He fought all his life for the rights of the poor. Faiz believed in classless society. Faiz's political beliefs and his association to the socialists really gave him a tough time. He lived in exile. He returned to his motherland just a few years before his death. Faiz was twice nominated for the Nobel Prize. He won the Lenin Peace Prize in 1962. During his long imprisonment as a political rebel, Faiz added a new fervor to his poems. He died in the year 1982. फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट पंजाब में 1911 में पैदा हुए, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। वो 20वीं सदी के जाने माने शायरों में से जाने जाते हैं। फैज़ ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीब लोगों के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ी। फैज़ की पॉलिटिकल बिलीफ्स की वजह से, जो उसकी पॉलिटिकल सोच थी, उसकी वजह से उसे ज़िंदगी में बहुत सी तकालीफ उठानी पड़ी। उसे एक लंबी जेल भी खानी पड़ी उसके लिए, और उन्हें जलावतनी का दौर भी देखना पड़ा। अपने इंतकाल से कुछ अरसे पहले वो अपने मदरलैंड, अपने वतन को वापस आए। फैज़ अहमद फैज़ 2 बार नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट हुए और 1962 में उन्होंने लेनिन पीस प्राइज़ भी जीता। अपने इम्प्रिजनमेंट के दौरान, अपने जेल खाने की ज़िंदगी के दौरान, उन्होंने एक पॉलिटिकल रेबल के तौर काम किया, यानी उन्होंने अपनी शायरी से ब्रिटिश रूल के खिलाफ रबीलिज्म का, बगावत का जज्बा खूब नुमायां किया अपनी शायरी की ओर से। वो 1984 में इंतकाल कर गए। Now let's have a reading of the poem Speak Up. Speak Up is a translation of Faiz's Urdu poem Bol. Speak up, for your lips are not sealed, and your words are still your own.
This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. बोल कि लब आजाद है तेरे बोल ज़बां अब तक तेरी है तेरा सुतवां जिस्म है तेरा बोल कि जां अब तक तेरी अब तक तेरी है तेरा सुतवां जिस्म है तेरा बोल के जब तक तेरी है बोल बोल के लब आजाद है तेरे बोल जुबान अब तक तेरी है तेरा सुतवा जिस्म है तेरा बोल के जब तक तेरी है बोल बोल के लब आजाद है तेरे Look there in that smithy, it's red on fierce flames. The padlocks are already opening their mouths, and Fetter is skirting around. देख क्या हनगर की दुकान में धुंध है शोले सुर्ख है आहन खुलने लगे कुफलों के दहाने पहला हर एक जंजीर कदम घर की दुकान में धुंध है शोले सुर्ख है आहन खुलने लगे उफलों के दहाने फैला है जंजीर का Speak now, for time is running out. Before your body and mind fade away, tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बां की मौत से पहले बोल कि सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले वक्त बहुत है जिस्म ज़ुबान की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले Now the summary of the poem. The poem Speak Up is an English translation of an Urdu poem Bol written by an eminent Urdu poet Ahmad Faiz and translated from Urdu by Shiv K. Kumar. In this poem,
The poet intends to give voice to the oppressed and voiceless people. He addresses to his countrymen that they should stand firm against the tyranny and brutality of the Britishers. ये poem Speak Up इंग्लिश ट्रांसलेशन है फैज़ अहमद फैज़ के उर्दू नज़म बोल की और ट्रांसलेशन की है शिव के कुमार ने। इस पोइम में शायर बेज़बान लोगों को बेआवाज़ लोगों को अपनी आवाज़ देना चाहता है जिनकी आवाज़ ब्रिटिश के जालिमाना रूल से दबी हुई है। वो अपने हमवतनों से मुखातिब होके कहता है कि आप मजबूत रहिए, आप सब्र रखिए against the tyranny and the brutality of the Britishers. He wants them to speak as they possess a strong body and the soul surviving in it, so they should use it to confront tyranny. शायर चाहता है कि लोग बोलें क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। वो चाहता है कि वो ब्रिटिश के जुल्म व ज़्यादतियों के खिलाफ लड़ें। इसीलिए वो अपने पहले स्टेंजा में कहता है स्पीक एज योर लिप्स और नॉट शील्ड स्पीक एज योर वर्ड्स आर योर ओन बोल कि लब आज़ाद है तेरे बोल कि ज़ुबां अब तक तेरी है। तो शायर चाहता है कि लोग जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। शायर उनको कहता है कि योर लिप्स आर नॉट सील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो लिप्स है आपका जो मुंह है वो किसी ने बोलने के लिए बंद नहीं किया हुआ है बल्कि ये आपका अपना डर है जो आपको जुल्म के खिलाफ लड़ने नहीं देता है। शायर national struggle को he compares the national struggle with smithy of a blacksmith. The smithy bears such a high temperature that it can melt any metal. In the same way, the rebels of the struggle have already ignited the revolution like the fierce flames of the smithy. जो शायर है वो नेशनल स्ट्रगल को फ्रीडम स्ट्रगल को सिमिथी के साथ कंपेयर करता है। जो ब्लैक सिमिथ है उसकी जो सिमिथी है उसका जो फॉर्ज है उसमें इतनी हीट होती है इतना टेम्परेचर होता है कि वो किसी भी दांत को पिघला सकता है। इसी तरह इस वक्त जिस दौर में ये पोइम लिखी गई है रेबिलियन ऑलरेडी चल रहा था स्ट्रगल ऑलरेडी चल रही थी। स्ट्रगल फ्रीडर्स ने लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने की हर एक कोशिश की थी। इसीलिए शायर कहता है कि जिस तरह ब्लैक सिमिथी की वो सिमिथी लोहार की दुकान पे जिस तरह हर तरह हमें शोले नज़र आते हैं इसी तरह मुल्क में भी आज़ादी के शोले आज़ादी के जज्बे हर तरह नज़र आते हैं। तो इसलिए एक आसान सा काम है हर एक के लिए बोलना आवाज़ उठाना। The poet says the chains and shackles of slavery had already weakened by the intense rebellion, so the only thing which people needed was to join and support the struggle. जो गुलामी की जंजीरें हैं गुलामी की बंदिशें हैं वो पहले से ही बगावत की वजह से फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए मेरे हमवतनों आपका जो काम है जो मैं आपसे चाहता हूँ वो सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करना और उन्हें सपोर्ट देना। So he requests his countrymen to join the struggle and raise their voice against the torments because the time was running out. He wants them to be awakened before their death occurs, so he appeals them to speak truth before it's too late.
फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि बस आप अपनी आवाज़ उठाएं जुल्म के खिलाफ, इससे पहले कि मौत आपको गले से लगाए, इससे पहले कि वक्त चला जाए. So he says, speak before it's too late. Speak before your mind and body fades away. Speak up what is truth. शायर चाहता है कि लोग बोलें, लोग आवाज़ उठाएं इससे पहले कि मौत उनको आए. इसीलिए देर करने से पहले, कुछ और देर करने से पहले शायर चाहता है कि लोग आज़ादी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं. Now an assessment. The poem is a voice to voiceless voiced. You have to choose the correct of the underlined words. To which does the poet compare the freedom? Why does the poet want the countryman to speak up? Dear students, I hope you would have enjoyed a lot. Thank you so much.